Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IS Academy. So today in this session where we dive into the another geopolitical drama that is spicier than your Chinese hot pot. So China's plan for reunification with Taiwan, as mentioned by Xi Jinping, Chinese president, just dropped his New Year resolution. And also the spoiler alert, it is not about the hitting the gym or cutting the carbs. It is about the Taiwan. Yes. So he says no one can stop China. And well, Taiwan seems to be saying that challenge has been accepted. तो ये कॉन्टेक्स्ट है इस न्यूज का. सो स्टिक अराउंड एज वी आर गोइंग टू अनपैक द मिलिट्री मैन्यूवर्स and also political jabs as well as the high stake games of diplomacy that has everyone is asking. So is this the family reunion or a family feud? So let's get started. What is the Taiwan's position on this? तो अभी रिसेंटली शी जिनपिंग ने कहा है चाइनाज रीयूनिफिकेशन के बारे में. तो अब इन्होंने ये कहा है कि चाइनाज रीयूनिफिकेशन, नो वन कैन स्टॉप दिस विद ताइवान. सो चाइनीज प्रेसिडेंट ने ऐसा अपनी न्यू ईयर स्पीच में कहा है. In past year, Beijing has stepped up military pressure near Taiwan, sending warship planes almost daily into the water and air space. तो काफी सारे टेंशन थे. तो चाइना ने ये भी कहा डेमोक्रेटिकली गवर्न ताइवान एज इट्स ओन टेरिटरी, जिस पर ताइवान की गवर्नमेंट ने ये रिजेक्ट किया है कि बीजिंग के जितने भी क्लेम्स हैं ये हम रिजेक्ट करते हैं और ताइवान का फ्यूचर डिसाइड करेगा वहां के लोगों की सहमति पर कि वहां के लोग क्या चाहते हैं. एंड बीजिंग आउट टू रेस्पेक्ट द चॉइस ऑफ द ताइवानीज पीपल. तो ये कहा है ताइवान ने बीजिंग के क्लेम पर. तो अब बेसिकली ताइवान का आप समझते हैं कि ताइवान हैज इट्स ओन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ताइवान सेड दैट ओनली इट्स पीपल कैन डिसाइड देयर फ्यूचर. And also Taiwan rejects Chinese claims that it is a part of China. इसीलिए in past year China has increased its military presence around the Taiwan region and also it regularly sent planes, aircrafts, all these things. So China also conducted 2 rounds of military exercises near the Taiwan region. अब ये चाइना ऐसा क्यों कहता है? चाइना इसके पीछे हिस्टोरिकल ट्रेंड की बात करता है, हिस्ट्री की बात करता है that national reunification is inevitable. तो ये चाइना के क्लेम्स हैं जिस पर ताइवान के प्रेसिडेंट ने ये कहा है ताइवान हैज इट्स ओन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड ओनली इट्स पीपल हैज द राइट टू डिसाइड देयर फ्यूचर एंड ताइवान रिजेक्ट द चाइनीज क्लेम दैट इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना. तो सबसे पहली चीज that China is also using rhetoric thing, familial bond, that the people on both the sides of Taiwan state are one family. They have shared history and destiny bound by a common sense of purpose. That is why China is pressurizing Taiwan to be a part of China reunification के लिए. And that is why in past year we have seen stepped up military presence near Taiwan region, then regular deployment of warship and use of aircraft, है ना, in water, Taiwan water as well as airspace. Then 2 rounds of war game, that is military exercises took place. Clear? And in December 2024, large naval massing in East and South China seas, जिस पर ताइवान का परसेप्शन ये है that normalization of Chinese military presence. तो ये कहा है ताइवान ने. तो अब आइए बात करते हैं सबसे पहले हम कुछ ताइवान और चाइना के बारे में कि ये चीजों की शुरुआत क्यों हुई है. तो सबसे पहले एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश कीजिए that बीजिंग का स्टैंड क्या है. That Taiwan is considered as Chinese territory. This is the stance of Beijing, that is China. Reunification is historical and national mission of China as said by China itself, and China is willing to use the force if necessary. जिस पर ताइवान का रिस्पॉन्स क्या रहा है? Taiwan has rejected the claims of Beijing, that is China, and Taiwan also advocates that only Taiwanese people can decide their future. अब ये क्यों शुरू हुआ? Because in 2024 in May a new president came, that is Lai Ching-te, and
लाई चिंगती को चाइना एक सेपरेटिस्ट के तौर पर देखता है। यस, लाई चिंगती, आप देख सकते हैं इनकी फोटो, इनको चाइना एक सेपरेटिस्ट के तौर पर मानता है। और यही वजह है कि जिसकी वजह से चाइना ने काफी ज्यादा अपना प्रेजेंस और प्रेशराइज करना शुरू किया। उसके साथ ही साथ यूएस का इन्वॉल्वमेंट, ताइवान रिलेशंस एक्ट, ये एकमात्र एक्ट है यूएस और ताइवान के बीच में जो अलाउ करता है यूएस टू सेल देयर आर्म्स एंड एमिनिशंस टू ताइवान, which is not liked by China. So US has sanctioned military suppliers, clear, involved in selling arms to Taiwan. और इसीलिए लाए यूएस स्टॉप ओवर, और जब लास्ट ईयर लाए ने स्टॉप ओवर किया था हवाई एंड गुआम आइलैंड में, इसको क्रिटिसाइज किया गया था बीजिंग द्वारा, क्लियर। तो इसीलिए चाइना लाई चिंगती को, याद रखिएगा, एक सेपरेटिस्ट के तौर पर देखता है, जिसकी वजह से ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसके बीच में, ताइवान और चाइना के रिलेशंस में, ये याद रखिएगा। तो यूएस का जो, अब याद रखिएगा, यूएस जो है वो आर्म्स एंड एमिनिशन बेचता है ताइवान को अंडर ताइवान रिलेशंस एक्ट, एंड चाइना अपोज करता है इस चीज को, एंड दैट इज व्हाई चाइना हैज इम्पोज सैंक्शंस ऑन अमेरिकन कंपनीज आल्सो एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन दीज सेल्स। रिमेंबर दिस थिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट ये है दैट in May 2024 Taiwan elected a new president whose name was Lai Ching-te, and Beijing इन्हें एक सेपरेटिस्ट के तौर पर देखते हैं, and Beijing sees that this president is supporting independence of Taiwan, which is not liked by China. That is why China massed naval forces, चाइना ने काफी ज्यादा नेवल फोर्सेस को ताइवान के पास में भेजा है, एंड ताइवान, और जब स्टॉप ओवर किया था लाई चिंगती ने हवाई एंड गुआम आइलैंड में, दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय इवन चाइना, क्लियर। तो अब इन सभी चीजों से हमें यह पता चलता है कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो रिलेशंस हैं वो हिस्टोरिकल टाइम से दिक्कतें चल रही हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चाइना क्यों क्लेम करता है ताइवान की उसका पार्ट है, इट इज रूटेड इन देयर हिस्ट्री। व्हाई? देयर आर वेरियस फैक्टर, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ताइवान वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन चाइनीज रिकॉर्ड अराउंड 239 AD एंड इट वाज एन इंटरमिटेंटली रूल्ड बाय किंग डायनेस्टी, और ताइवान को चाइना की किंग डायनेस्टी ने भी रूल किया हुआ है from 1683 until it was ceded to Japan after first Sino-Japanese War in 1895. So 1683 से 1895 तक ताइवान पर चाइना की किंग डायनेस्टी रूल कर रही थी, एंड आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ताइवान was restored to Chinese control under रिपब्लिक ऑफ चाइना। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ताइवान, जिसको फार्मोसा कहा जाता था, its name was Formosa, it was restored to Chinese control under Republic of China whose leader was Chiang Kai-shek, क्लियर। अभी मैं इसकी भी बात करूंगा। तो अब होता यह है कि चाइना में सिविल वॉर शुरू होता है फ्रॉम 1945 टिल 1949। इस सिविल वॉर में दो पार्टियां इंक्लूड होती हैं, कुमिंगटांग पार्टी जिनके लीडर थे चियांग काई शेक, ऑन दी अदर हैंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जिनके लीडर है माओ जेडोंग, तो ये दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं इसमें। सो इन 1949 द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी डिफीटेड द रिपब्लिक ऑफ चाइना इन सिविल वॉर एंड दिस लीडेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो 1949 में जो कम्युनिस्ट चाइना है दैट वाज नेम्ड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना व्हिच वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ चियांग काई शेक। तो चियांग काई शेक वहां से एस्केप कर जाते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से और चले जाते हैं ताइवान में। फिर वो वहां पर अपना रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाते हैं ताइवान में, वेयर इट कंटिन्यू टू क्लेम द लेजिटिमेसी एज गवर्नमेंट ऑफ ऑल चाइना। तो
रियल चाइना कहा जाता था उस समय रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान था। गेटिंग माय पॉइंट? एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तब से ही ये कह रहा है माओ जेडोंग के टाइम पीरियड से दैट ताइवान इज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। ये क्लेम किया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने। तो आप देख सकते हैं ये किंग डायनेस्टी का मैप था जिसमें ताइवान किंग डायनेस्टी का पार्ट हुआ करता था। क्लियर? तो ये चाइनीज सिविल वॉर के टाइम पीरियड की पिक्चर्स हैं, ये याद रखिएगा। तो फाइनली तो अब हुआ क्या इसके बाद? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन चाइना प्रिंसिपल। अब ये वन चाइना प्रिंसिपल है क्या? तो चाइना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज अ कम्युनिस्ट कंट्री एंड दैट वाज द पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर, जहां पर यूएस ने कम्युनिस्ट चाइना को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो यूएस वाज सपोर्टिंग ताइवान रीजन। सो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंटेन्स दैट देयर इज ओनली वन चाइना। तो कम्युनिस्ट चाइना का कहना है दैट देयर इज ओनली वन चाइना, जिसमें ताइवान भी आता है। दैट इज व्हाई दे आर सीकिंग फॉर रीयूनिफिकेशन एंड दिस प्रिंसिपल हैज बीन अ कॉर्नरस्टोन फॉर बीजिंग्स फॉरेन पॉलिसी सिंस माओ जेडोंग एरा। माओ जेडोंग एरा से वो वन चाइना पॉलिसी की बात कर रहे हैं। एंड दिस रिमेन्स अनयील्डिंग डिस्पाइट ताइवान सेल्फ गवर्नेंस एंड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। नाउ इसी के साथ ही था अब चाइना अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए दो कॉन्फ्रेंसेस की बात करता है, दैट इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट। वन इज कैरो डिक्लेरेशन ऑफ 1943, अनदर इज पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। ये आप देख सकते हैं कैरो डिक्लेरेशन ऑफ 1943 एंड दिस इज पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड की कॉन्फ्रेंस है। अब इसमें क्या कहा गया था? इन दोनों ही कॉन्फ्रेंस में सजेस्ट किया गया था दैट ताइवान शुड रिटर्न टू चाइना पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ताइवान चाइना को दे दिया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जो बीजिंग हमेशा यही क्लेम करता है कि जब इन दोनों कॉन्फ्रेंस में कहा गया था दैट ताइवान विल बी गिवन टू दी चाइना, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? बट ताइवान हमेशा ये कहता है दैट ताइवान हैज डेवलप्ड इट्स ओन आइडेंटिटी विच इज सेपरेट फ्रॉम मॉडर्न चाइनीज स्टेट। तो इसमें सबसे बड़ा कारण है चाइना के सिविल वॉर का और कुमिंगटांग पार्टी जो एस्केप कर गई थी ताइवान रीजन में। तो ये याद रखिएगा। तो इसीलिए 1954 टू 55 में जो कोल्ड वॉर एरा का टाइम पीरियड है, जब ताइवान रीजन में किसकी गवर्नमेंट थी? कुमिंगटांग पार्टी, चियांग काई शेक की गवर्नमेंट थी, जिसको रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता था। उस समय पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 3 आइलैंड्स पर जो कि ताइवान के कंट्रोल में थे, वहां पर बॉम्ब गिराए थे, हमले किए थे, लाइक जिनमेन, माजू एंड दाचेन। ये जो आइलैंड्स हैं आप देख सकते हैं। और इसीलिए याद रखिएगा वो कम्युनिस्ट चाइना था, इसीलिए यूएस को यहां पर आना पड़ा ताइवान के सपोर्ट में। इसीलिए यूएस की कांग्रेस ने एक फार्मोसा रेजोल्यूशन पास किया एंड इन दिस रेजोल्यूशन दे हैव ऑथराइज्ड प्रेसिडेंट ड्वाइट ई आइजनहोवर टू डिफेंड ताइवान, कि हमें ताइवान को डिफेंड करना होगा, ताइवान की टेरिटरी को डिफेंड करना होगा। अब 1955 में व्हेन चाइनीज प्रीमियर ज़ोउ एनलाई he declared at the Bandung conference that he wanted to negotiate with US. उन्हें यूएस के साथ नेगोशिएट करना था, बट एट द सेम टाइम सिविल वॉर ब्रोक आउट इन लेबनान इन 1958। अब यूएस तो लेबनान में बिजी हो गया, सो चाइना रिज्यूम बॉम्बिंग एंड प्रोवोकिंग यूएस टू सप्लाई ताइवानीज आउटपोस्ट ऑन दी आइलैंड। तो चाइना ने तब प्रोवोक किया यूएस को टू सप्लाई ताइवानीज आउटपोस्ट ऑन दी islands. Clear? So People Republic of China, that is mainland China, Republic of China क्या है? That is Taiwan region. तब उस समय से ही 1955 से ही दोनों कंट्रीज याद रखिएगा एक दूसरे की टेरिटरी पर रोज बॉम्ब गिराते थे। समझ में आ रहा है? और ये 1971 तक कंटिन्यू रहा, काफी सारी हॉस्टिलिटीज रही दोनों देशों के बीच में। अब 1971 में the president of United States of America was Richard Nixon and their secretary of state was Henry Kissinger, जिन्होंने एक सीक्रेट डिप्लोमेसी की चाइना के साथ। ये आप देख सकते हैं इमेजेस। अब ऐसा क्या हुआ? 1971 यूएस इनॉग्रेटेड टाइज विद मेनलैंड चाइना। इन्होंने कम्युनिस्ट, जिसको हम कहते हैं पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सीक्रेट डिप्लोमेसी की अंडर द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दैट इज हेनरी किसिंजर।
who was also the national security advisor to President Richard Nixon. अब 1975 में क्या हुआ? In 1975, Chiang Kai-shek, who was the leader of Taiwan, that is Republic of China, he died. So martial law was lifted and Taiwan got its first democratic reforms. Now, US at the same time, US also recognized Communist Party, which was ruling in People's Republic of China as legitimate government of China in 1979. अब यहां पर अब आपको समझना पड़ेगा, यूएस ने रिकॉग्नाइज कर लिया कम्युनिस्ट चाइना की पार्टी को, क्लियर, एंड यूएस ने बोल दिया दिस इज द मेन चाइना, मेन गवर्नमेंट ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना. So this ended its official relationship. Now this ending its official relationship with Taiwan and abrogating its mutual defense treaty with the island. अब ऐसा क्यों किया, उसके पीछे रीजन है that China, that is communist China and USSR did not have their good relation. That is why US started supporting communist China. Clear? तो मैंने आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी चीजें परमानेंट नहीं होती. The only permanent thing is permanent interest. Clear? So US has a policy of strategic ambiguity towards Taiwan. इसका मतलब क्या है कि it maintained its ties with Taiwan. US अपने ties को maintain करता है ताइवान के साथ, in which remember this thing, US weapon sell करेगा, but officially याद रखिएगा US ने वन चाइना पॉलिसी को भी क्या किया है, सब्सक्राइब किया हुआ है. समझ में आ रहा है? और एक तरफ हथियार भी बेच रहा है ताइवान को, दूसरी तरफ वन चाइना पॉलिसी को भी सपोर्ट कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें ताइवान जो है एक सेपरेट एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है. ये डबल फेस है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का. एंड जस्ट 14 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज ताइवान एंड मोस्ट आर वेरी स्मॉल एंड मेनी आर रिमोट आइलैंड नेशंस. सो अब ये वन चाइना पॉलिसी क्यों आई? अब ताइवान के अलावा चाइना के साथ जो डिस्प्यूट है हांगकांग के, मकाओ, ये दो रीजन इंपॉर्टेंट है. सो ब्रिटिशर्स, मकाओ जो था वो ब्रिटिश के पास, याद रखिएगा, मकाओ एंड जो दूसरा आइलैंड है दैट इज हांगकांग, हांगकांग ब्रिटिश के पास था, मकाओ पोर्चुगीज के पास था. सो ब्रिटिश प्रिपेयर टू एग्जिट हांगकांग इन 1999. ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम 1999 में हांगकांग से निकल जाएंगे. अब इसमें क्या होगा, वन चाइना टू सिस्टम्स, मतलब solution was offered to Taiwan also कि एक ही चाइना है बट दो सिस्टम रहेंगे. क्लियर? ये सोल्यूशन ऑफर किया गया ताइवान को की, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय ताइवान. ताइवान ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया. अब वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी प्रपोज की थी डेंग जियोपिंग ने आफ्टर ही टुक द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. Now, Deng Xiaoping का प्लान क्या था? He wanted to unify China and Taiwan under one country two system policy, which provided autonomy to Taiwan. अब इस सिस्टम में हो गया क्या? Taiwan could follow its capitalist economic system. Taiwan can also have its separate administration, and Taiwan can also keep its own army, but under the sovereignty of China. समझ में आ रहा है? सो ताइवान ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया. ताइवान ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था. अब ये जो आइडिया है टू सिस्टम्स का इन वन कंट्री, इट वाज हाउएवर अडॉप्टेड इन हांगकांग एज वेल एज मकाओ, जब ब्रिटेन और पोर्चुगल ने एग्जिट की वहां से. क्लियर? 1997 एंड 99 में. तो यही सेम चीज ताइवान को भी प्रपोज की गई, बट ताइवान ने क्या किया, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो अब अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें तो चाइना जो है, चाइना सीज ताइवान एज पार्ट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी, इवन दो ताइवान हैज बीन सेल्फ गवर्निंग फॉर डिकेड. चाइना हैज नॉट रूल्ड आउट एक्चुअली यूजिंग फोर्स टू ब्रिंग द ताइवान अंडर इट्स कंट्रोल, है ना. सो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन कंटिन्यूज टू कॉज टेंशन बिटवीन चाइना, ताइवान एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अगर हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, शी जिनपिंग स्पीच ऑफ 2023 in which he mentioned that reunification is inevitable and also the part of rejuvenation of Chinese nation, that Taiwan is important for China, important for security hai. So Taiwan state is very important. Taiwan state is the hotspot or you can say flashpoint for international tensions. So Beijing long term view क्या है?
बीजिंग लॉन्ग टर्म व्यू में ताइवान को एक यूनिफाइड चाइना के तौर पर देखता है, एंड बीजिंग ऑल्सो सीज ताइवान एज यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी अंडर चाइनीज कंट्रोल. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस diplomatic implications, if we see, what will be the China-US relations? US and China relations are strained due to military sales, because US sell arms and ammunition to Taiwan, and that is why China has put sanctions on US companies जो defense supplier है ताइवान के. Then regional stability, if you see East and South China Sea, so here increased Chinese naval activities and also created a tension in this region and broader tensions with neighboring countries over territorial and military assertiveness of China. तो इस पूरे रीजन में क्या है, काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स. क्लियर? तो अगर हम बात करें इन सभी चीजों की, तो यहां पर पोटेंशियल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? अब तीन तरह के पोटेंशियल आउटकम्स हो सकते हैं. पहला, पीसफुल रेजोल्यूशन, जो डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व किया जाए, है ना, डायलॉग रेस्पेक्टिंग ताइवानी सेल्फ डिटर्मिनेशन. सेकंड, मिलिट्री एस्केलेशन. there is a possibility of Chinese forceful actions to reclaim Taiwan. थर्ड, इंटरनेशनल मीडिएशन, की इंटरनेशनल कम्युनिटीज को आना हो या ग्लोबल पावर्स आए बीच में इस चीज को सॉल्व करवाने के लिए, लाइक रोल ऑफ यूएस एंड इट्स एलाइज इन मेंटेनिंग द बैलेंस. गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली जब हम इन सभी चीजों की बात करते हैं ताइवान से रिलेटेड, तो तीन ही पॉसिबल आउटकम्स हैं. या तो आप फोर्सफुली मिलिट्री का यूज करें, या मीडिएशन हो, या डिप्लोमेसी एंड डायलॉग का यूज किया जाए. तो these things are there in the newspaper. If we conclude these things, so चाइना क्या कर रहा है? चाइना insist ताइवान. Getting my point? That अब ताइवान क्या है? चाइना, याद रखिए, ताइवान को इंसिस्ट क्यों कर रहा है? पहली चीज, ताइवान के पास सबसे इंपॉर्टेंट जो बिजनेस है दैट इज सेमीकंडक्टर चिप्स. समझ में आ रहा है? तो आज अगर हम देखें, चाइना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से भी गुजर रहा है, डिससेटिस्फैक्शन भी है. पीपल ऑफ चाइना आर आल्सो डिससेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी. सो देयर यू हैव इट. चाइना इंसिस्ट ताइवान इज द प्रोडिगल सिबलिंग. Okay, while Taiwan is more like, we moved out from your family a long time ago and we are not coming back. Clear? So with war games, political tensions and the US casually playing arms dealer, this is shaping up to be the standoff of this epic proportions. Now the question for you all, that will it be a peaceful reconciliation, or is someone about to flip the geopolitical monopoly board? So one thing is for sure, that the world will be watching, and don't forget to like and subscribe Legacy IAS Academy channel on YouTube, and drop your comments if you have any doubts. So remember this thing, that Taiwan and China relations, these are most important thing for 2025, and also as we are looking at the reunification, or is this family drama heading for the history books. So until then, see you next time. Thank you so much.